So today we have a very special guest, निशा लूथरा मैम. एक्चुअली मैं भी उनके साथ बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूँ, ग्लेनविल सर और निशा मैम के साथ में. एंड ही इज वेरी गुड. एंड अभी जो उनकी एक डेब्यू पोएट्री बुक आई उन्स करके, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. और उसके साथ साथ में मैम की पूरी जर्नी की कैसे, उनकी स्टार्टिंग जर्नी से लेके अभी जो वर्क कर रहे हैं और उनकी आने वाली बुक्स के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले मैम मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ हमारी द फिगरिंग आउट डायरी में. यहाँ पर हम लोग ऐसे ऑथर्स, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और राइटर्स को लेके आते हैं जो काफी अंडररेटेड हैं लेकिन बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं. उनकी राइटिंग्स, उनकी पोइट्रीज, जो जैसा आप उर्दू लिखते हैं, ठीक है, जो उन्स में आपने लिखा है जिसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, हमने भी देखा. और अभी जो आपकी न्यू पोइट्रीज या कलेक्शंस जो आने वाले हैं, वो एज ए एक्सपर्ट आप उसको कैसे राइटिंग करते हैं और आपकी जर्नी कैसे रही, ये सब का स्टार्टिंग से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में दीजिए. देन वी विल स्टार्ट द डीप डाइव इनटू द मोर कॉन्सेप्ट अबाउट योर बुक, अबाउट योर जर्नी. नमस्कार विक्रांत. मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और ऑल द टीम ऑफ यंग पीपल हु आर एट अनंत प्रेस, you're doing a great job with giving people the platform to express themselves, to publish their books, to have a conversation on the podcast, which is very good work from the youth. सो विक्रांत, मेरी जर्नी जो है वो राइटिंग की ग्रीफ से शुरू हुई, लॉस से शुरू हुई. मेरे लिए राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ माय इमोशंस. व्हेन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू होल्ड ऑन टू सम इमोशन, आई जस्ट राइट इट and give it to the universe. So that's how my writing journey started. And but I am primarily a Rangkarmi, a theater director. I started as an actor, but now I'm a theater director. I have directed a few films also. And since last 2-3 years, I've been into the studies of mental health and healing. I'm a psychodrama practitioner coach, and I work with mental and holistic healing through performing arts. So this is my story. Okay. And what about the Chetna synthesis, ma'am? Actually, I heard something recently about, like, with Glenville and the team about the Chetna synthesis. So what is that? Chetana synthesis is a modality which me and Dr. Glenville Ashby, a psychotherapist from New York, has developed. Okay. It is based on the 4 pillars, which is one pillar is breath, shwasa, the other is movement, the third pillar is psychodrama and psychotherapy, and fourth is all the other art therapies like music, sound, art, colors, all of them. So what we have developed is that how do we dive deep into the mental and holistic health, our emotions, how do we address our emotions and counter those griefs that we have as humans through Chetana synthesis. Okay. So actually, and how you met with Glenville sir, ma'am? Actually. Okay, that's a very beautiful story. So, Glenville and myself, we were connected on the social media. And one fine day, he approached and he said that he sent me the links of his books and the kind of work that he does. And he says that I'm very impressed with how your work is really set in the Indian roots, Indian movement, Indian theater. And I really like to know more about your work and do something together. And that's how we got on the Zoom calls, Zoom meetings. And after a lot of contemplation, we now have Chetana Synthesis. We run a company called, which is co-founded by both of us, House of Happiness. We are going to where we work with young adults, corporates, we work with women. Also, now we are coming up with a physical space for House of Happiness in Haridwar. Okay. So we will be dive into more in the concept about the House of Happiness.
But before that, I just want to know something about the title Uns itself. Like for our listeners who may not know, Uns is a Urdu means a deep, quiet attachment and intimacy that is almost beyond words. So, why this word is the title of your book, ma'am? So, my first book talks about the relationships, associations, and emotions which shaped me who I am today. And which was not only love, which was more than love, which was deep attachment to another human being. Whether it was my mother, father, my sister, my teachers, my family, my kids, or anyone else who has shaped me as an artist, as a person, as someone who I am today. So, Uns really resonated with the emotion which the book was stating. That is why, hence, the name is Uns. ओके, तो ये वर्ड एक्चुअली आपको मिला कहाँ से? लाइक वेयर यू फाउंड दिस वर्ड? उन्स बहुत अरसे से मेरे दिमाग में था। उन्स एक 7 स्टेजेस में से प्यार के उन्स को भी एक स्टेज कहा जाता है, जहाँ पर ज़ाती तौर पर हमें प्यार ना भी हो, लेकिन एक बहुत गहरी अटैचमेंट किसी और इंसान से हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो इश्क, मोहब्बत, प्यार ही हो, वो बहुत गहरी अटैचमेंट है और वो ज़िंदगी भर चल सकती है। तो वहां से ये शब्द मुझे मिला और मेरे जहन में रह गया, और जब किताब आई तो मुझे लगा कि उनसे बेटर कोई टाइटल नहीं हो सकता। Okay, that's great. And so, if people want to buy your book, then where your books are available? So the two reprints of the book have already been done. I don't think so. I wrote, my emotional language of expression is Hindi. I wrote this book in Hindi Hmm. as my maiden book, but then it was really received very well by the audience and by the co-authors and the co-poets. So my book is now available in 6, 7 other languages like Punjabi, English, Urdu, Bangla, Oriya, and those books are still available on the Amazon. But Hindi reprint, third or fourth time, I'm still thinking of that because my second book is also now on the verge, so I'm still thinking on that. So, हिंदी अभी तक नहीं आई है बुक अब? हिंदी का थर्ड रीप्रिंट नहीं आया है। हिंदी अमेजोन पे 2 बार खत्म हो चुकी है आकर, लेकिन थर्ड रीप्रिंट अभी आना है। Okay, that's great. You talked about like वो तो आपकी फर्स्ट बुक थी, तो अभी कोई नेक्स्ट बुक्स की प्लानिंग चल रही है या फिर people can find your more books in future as well? जी, मेरी जो अगली किताब है वो पोएट्री की, वो बिल्कुल रेडी है। Okay, वो अभी एडिटिंग स्टेज पे है और बहुत जल्द वो आप सब लोगों के सामने भी होगी। that's great news. Ma'am, then let's dive more into the concept of your first book. Okay, like not about the particular book. I just wanted to ask a question. Like every poetry has a collection that one poems that cost the most. Okay, and the one where the poet had to look something they did rather have kept hidden. Is there a poem in Uns that was emotionally and the hardest to write or the closest to your bone? या विक्रांत, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि एक या दो कविताएं एक किताब में ऐसी जरूर होती हैं जो बहुत बहुत मुश्किल होती हैं लिखनी और महंगी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं जहां तक जाती तौर पर उसकी बात की जाए। तो इस किताब में उन्स में एक ऐसी कविता है जिसका टाइटल भी उन्स है। Okay. और वो मुश्किल इसलिए थी क्योंकि आई हैड टू कॉन्फ्रंट द वेरी डिफिकल्ट फीलिंग्स, द इमोशंस दैट आई डिड नॉट address till the time I wrote this poem on the piece of paper, and I felt very exposed after writing it. So there were some emotions that I never sat down and
agreed or disagreed with them. But then one fine day I sat down and I wrote it on the paper, and then I really felt that, I'm exposed, I'm bare open. So, yeah, ये इसकी कुछ लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि किसी भी बात का कोई मायना नहीं रहा। जी हाँ, एकदम से सब कुछ बिखरा पड़ा था मेरे दिल के कमरे में, उन ताश के पत्तों की तरह जिन्हें बड़ी ही एहतियात से संवारा और एक पिरामिड की तरह जोड़ा गया हो। लेकिन ऐसा लगा मानो एक हवा के हल्के से झोंके ने मैंने उस प्यार से संजोए पत्तों के किले को तहस नहस कर दिया हो, कि मेरे दिल के उस कोने में एक हंसी के ठहाके रो रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई समझ ही नहीं पाया था। और उस खिड़की के नीचे वाली शेल्फ पर बिखरे पड़े थे वो पल, शोक मनाते हुए कि क्या एक पल की गलतफहमी भारी पड़ गई उन पर। तो इस तरह से ये कविता 2 पेजों में समाई है, और इस कविता को इतना पसंद किया गया कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में एक पोएटिक फिल्म की तरह इसको चलाया भी गया, और मैंने उस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था कोरोना टाइम्स में ही। Okay. तो जी, इसको एक पोएट्री फिल्म का रूप भी दिया गया था। Just kind of short story, something like that. Yeah, short poetry film. Okay, so if someone want to watch your like that a short film, so where is it available as of now? It is on the Jaipur Literary Fest film shorts. It's available on YouTube, and you can also share the link of that film here in this podcast later. Yeah, for the our audience, we will drop a link in the description. Yeah. Yeah. So now my next question, मैम, जैसा आप भी फील कर रहे होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक को अभी जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो लाइक एज ऑफ नाउ उर्दू पोएट्री, हिंदी कविता एंड लाइक देयर इज अ वेव ऑफ न्यू इंस्टाग्राम पोएट्स इन इंग्लिश एंड उर्दू एंड हिंदी एज वेल। ओके, सो क्या आप भी उसी तरह से पोएट्री फिट होती है कि जो अभी न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं उर्दू एंड हिंदी कविता की, या क्या न्यू रीडर्स को भी ये पसंद आएगी? अच्छा, मैंने कभी भी विक्रांत किसी भी कैटेगरी या ट्रेंड को फॉलो करते हुए कुछ भी नहीं लिखा या कुछ भी नहीं बनाया या कुछ भी इवन रंगमंच पर भी कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कविता जीवन की तरह होती है और वो बहती रहती है, और जिस दिल को वो छू जाए वो वहां घर बना लेती है। तो I don't think so that I'm following any of the trends which are going on, but I write from whatever I feel, और अगर वो आपके दिल तक पहुंचती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मेरे लिए पोएट्री जो है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स। ओके, सो एज ऑफ नाउ जो अभी का ट्रेंड चल रहा है, लाइक उर्दू पोएट्रीज, हिंदी पोएट्स, आपको क्या लग रहा है कि जो पुराना क्या हिंदी एंड उर्दू पोएट्रीज आगे जाकर और भी उनका मार्केट बढ़ेगा, या फिर रीडर्स हमें और भी मिलने के चांसेस हैं कि 1-2 साल बाद, 1-2 साल मैं नहीं कह सकता, 4-5 साल बाद हिंदी पोएट्रीज एंड उर्दू पोएट्रीज का यानी डाउनफॉल हम आना शुरू हो सकता है? जी, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग जो कि रंगमंच से, फिल्मों से और शब्दों से जुड़े हैं, उनका ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, फर्ज है कि हम लोग अपने यूथ को अच्छी उर्दू पोइट्री, अच्छी हिंदी पोइट्री, अच्छी इंग्लिश पोइट्री से रूबरू कराते रहें। और हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म, जैसे अब आप विक्रांत, आप भी यंग जनरेशन से हैं, बट आप भी एक ऐसे मंच क्रिएट करते रहते हैं और ऐसी किताबें आप भी छापते हैं जो और लोग पढ़कर प्रेरित हो सके। तो जब तक आपके और मेरे जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि कविता तो जीती रहेगी। जी, अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि जो अभी जो हिंदी एंड उर्दू पोइट्रीज चल रही, काफी इंस्टाग्राम फेसबुक पे, पता नहीं आप देख रहे होंगे कि नहीं करके, लेकिन as of now, like there are a lot of authors, for an example, there is a one author name of Wajid Sheikh,
उनकी पोइट्री बुक का टाइटल का नाम सुकून है, और वो उर्दू पोइट्रीज पर बेस्ड है, जो काफी अच्छी परफॉर्म करती है। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर उनकी काफी बुक सेल होती हैं, और इंस्टाग्राम पर भी लोग काफी पसंद करते हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं अभी उनके। इंशाल्लाह अगर ऐसी बात है, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होता रहना चाहिए। That's great. So my next question, ma'am, like you are already working on your next poetry collection, and the listeners can feel the anticipation for that. And without giving it too much away, can you give us a glimpse into the emotions world of this new book, and what Hmm. are you sitting inside and writing for? So the first book was more about the expression of self and becoming, and how people, circumstances, and time and life shaped me. Second book is more inwards. It's more contemplative. Uh, I also feel that over the period of time, my language has been more quieter but more sharper. मुझे ऐसा लगता है कि अब शब्द जो है वो अपने आप एक जो इवॉल्वमेंट है वो अपने आप बहती जाती है कागज पर। और जरूर है कि आप ज्यादा अंदर के जो अंदर का जो संसार है उसके बारे में ज्यादा पढ़ पाएंगे। ओके, बट लाइक जैसे मैम अभी तो फर्स्ट बुक आपकी पब्लिश हो गई है, बट नाउ द मेन लाइक रिस्कीएस्ट वन वी कैन से कि एक पोएट के लिए रहती है कि रिलीजिंग अ सेकेंड बुक इज द रिस्कीएस्ट बुक, and because the first voice has been already heard, and now the question is, can you surprise even yourself? So आपका क्या कहना है इसमें? सो विक्रांत, मैंने जैसे पहले कहा कि कोई भी काम मैं उसके आउटपुट को देखते हुए बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। मैं किसी भी काम के प्रोसेस में, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो फिल्म हो, हम्म, चाहे वो मेंटल हेल्थ की एक छोटी सी वर्कशॉप हो, हम्म, मैं उस प्रोसेस में अपने आप को इतनी ज़्यादा झोंक देना चाहती हूँ कि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं रहता कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। क्योंकि सारा जितना भी काम मैं करती हूँ वो पहले, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान की तरह थोड़ी सेल्फिश भी हूँ, वो पहले मुझे खुशी प्रदान करे, तभी मैं वो काम जो है वो कर पाती हूँ, वो किसी भी तरह का काम हो। तो मेरे लिए पोएट्री, थिएटर, फिल्म और मेंटल हेल्थ इज दैट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, फ्रॉम मी। तो कुछ भी बाहर से जो भी उसको प्यार मिलता है वो उसका अपना अस्तित्व है, वो उसके पीछे मैं कुछ भी सोच नहीं रखती हूँ। Okay, so that is a great concept. उसके साथ साथ में मैम एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए कि आप इन दिस पॉडकास्ट कैन यू एबल टू रिवील योर टाइटल ऑफ द बुक ऑफ सेकंड बुक? तो सेकंड मुझे तो किताब पता का है। जो टाइटल है वो है रंजिश। रंजिश ना किसी और से नहीं, रंजिश अपने आप से। रंजिश अपने आप से एक वक्तव्य है, एक डायलॉग है जो कि अपने आप से ही शिकायत कर रहा है। तो वो सारी कविताएं अपने आप से शिकायत है। That's great. And so, ma'am, this is something like personal question. Okay, like हर ऑथर हो गए, रीड या फिर पोएट्स हो गए, सभी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें वो फील करते हैं कि दिस पोएट्री इज माय फेवरेट पोएट्री, जो कंडीशन में लिखते हैं राइटर्स या पोएट्स, ठीक है? तो वो पोएट्री या फिर वो क्रिएशन आपके लिए कौन सी थी? अगर आप कुछ उसके बारे में बताएं, या फिर बिहाइंड द सीन कि जब आप वो लिख रहे थे, सो व्हाट यू आर थिंकिंग बिहाइंड दैट? अब एक माँ के अंदर से जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो उस हर बच्चा उसके लिए इक्वली प्यारा होता है।
और वो उसी के अंदर से जन्म लेता है और उसी की कोई ना कोई फीचर उसके अंदर रहता है। तो उसी तरह हर कविता, हर नाटक, हर फिल्म, हर चीज क्योंकि एक ही इंसान के अंदर से उसके संसार से जन्म ले रही है, तो ऐसा कह पाना कि कौन सी एक चीज आपकी फेवरेट है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर हर कविता ने मुझे कुछ नया सिखाया है, हर नाटक ने मुझे कुछ नया सिखाया है, हर चीज जो मेरे हाथ से और मेरे दिमाग से और मेरे दिल से निकली है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्यारी है। और सब प्रेशियस है क्योंकि हर काम हम जब भी उठाते हैं तो उसको उसमें अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर देते हैं, तो हर काम हमें बहुत प्यारा है। सो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक चीज को आज डिफाइन कर सकती हूँ। ओके। एंड सो मैम, एक और क्वेश्चन आपके लिए कि सभी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, मेरी लाइफ में या फिर कोई भी आप ले सकते हैं जनरली, कि एक ऐसा मोमेंट जहां पर वो सब अपने लोएस्ट पॉइंट पर रहते हैं, ठीक है, जहां उन्हें लगता है कि अब मैं आगे लिख नहीं पाऊंगी या फिर अपनी जो आगे जिंदगी की लड़ाई जो फाइट है वो नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो वो मोमेंट आपके लिए कौन था, और उसके बाद जो एनलाइटमेंट की तरफ आप गए वो जर्नी हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस मेरे जहन में ऐसा कोई पल आया नहीं है जब मैं ये कहूं कि अब मैं लिख नहीं पाऊंगी। क्योंकि मेरे लिए खुशी और गम दोनों ही लेखन से जुड़े हैं। और कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो रंगमंच से जुड़ा है। और अगर मैं लिखती भी हूँ तो मैं उसको उसी वक्त यूनिवर्स को दे देना चाहती हूँ, मैं उसी वक्त उसको रिसाइट करके रिकॉर्ड कर देती हूँ, चाहे वो किताब में आए या ना आए। लेकिन क्योंकि मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ तो मैं वो कर देती हूँ उसको फ्रीज। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं है। हाँ, राइटर्स ब्लॉक आता है कभी ना कभी, तो मैं फिर आई स्टॉप पुटिंग दोज इमोशंस इनटू लैंग्वेज and I just go and read more, I listen more, I just be quiet so that I can receive more. But ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया कि ये कहा हो कि अब मैं लिख नहीं सकती। ओके। सो ऐसा, जैसे इफ इन समवन्स लाइफ दे फील लाइक दिस काइंड ऑफ मोमेंट, लाइक एज ऑफ नाउ मैं कनेक्ट करूं तो जो अगर आप न्यूज़ पर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, जो नीट स्टूडेंट्स थे, प्रिपरेशन जो कर रहे थे, दैट हैज बीन लीक्ड एवरीवेयर, एंड अब उनके लिए री एग्जामिन का सिचुएशन आ गया है, ठीक है, कि री एग्जामिन होगी। पर आपको पता है कि नीट का शेड्यूल कितना टाइट और कितना लाइक डिप्रेसिंग रहता है, ठीक है। तो उस ऑन दैट काइंड ऑफ मोमेंट कैसे एक पोएट्री, एक कलेक्शंस लोगों को दोबारा एनलाइटमेंट की तरफ लेके जा सकती है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन विक्रांत। अगेन, अगर आपकी कला किसी को हील नहीं करती है, किसी को रोते हुए को हंसा नहीं पाती है, किसी के मन तक नहीं पहुंच रही है, तो उस कला का कोई फायदा नहीं है। तो कोरोना काल में क्या हुआ कि जब सारे कलाकार और इवन ह्यूमन रेस एज इट इज इन जनरल was out of hope, out of ambition, out of, no, there was no looking brighter side on the other side of that time. तो हम्म। उस वक्त भी हमने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज किए जहां पर हमने कैंपेन चलाया कि किस तरह से हम इस काल से निकले, हम क्या करें कि हम अपने आप को किसी उम्मीद से भरा पाए और अगले दिन का इंतजार करें और इस समय पर भी हंस पाए, लिख पाए, गा पाए, गुनगुना पाए। तो उस वक्त भी हमने बहुत कविताएं रची और बहुत कविताओं को बहुत बड़े बड़े कलाकारों से रिसाइट भी करवाया और लोगों तक पहुंचाई। और उस कैंपेन के अंडर, सेव द आर्ट एंड द आर्टिस्ट कैंपेन के अंडर, हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को खुदकुशी करने से और छोटे काम करने से, और जो जहां वो एक मंच का राजा था
आज वो ईंटें उठा रहे थे कोरोना काल में, तो उन लोगों को उस उम्मीद की बहुत ज़रूरत थी कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर कला आपके साथ आकर आपके कठिन समय में खड़ी नहीं हो सकती, तो उस कला का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत से ऐसे कवि हुए जिन्होंने हम लोगों को बहुत होप दी, बहुत इंस्पिरेशन दी, और वो कवि आज भी हमारे साथ ज़िंदा हैं, इफ नॉट फिज़िकली बट मेटाफोरिकली दे आर विद अस। सो Yeah. मुझे लगता है कि विक्रांत, ये चीज़ें हमारे यूथ के लिए ज़रूरी हैं, और एक इंसान जो रंगमंच से जुड़ा है, जो किताबों से जुड़ा है, जो संगीत से जुड़ा है या नृत्य से जुड़ा है, वो इंसान कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अपना एक संसार है। Yeah, this is actually a great example जो आपने बताया कि अभी तक वो पोएट्स की जो पोएट्स हैं वो पोएट्री की फॉर्म में हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी जिंदा है हमारे जहन पर. एंड दैट इज द लाइक ग्रेट लाइन यू हैव शेयर्ड. And ma'am, let's dive something into more concept into the book. So my next question is like, what conversation do you hope this book starts, like your second book basically, in families, in clinic, in government, who is the reader you are most urgently writing for? I'm writing for the softness in the power. Hmm. I'm writing for the resistance in loving again. I'm writing for finding the happiness in the saddest of the moments. So I'm not writing for the particular set of audience. I'm writing for the people who feel these emotions. So I think there is a huge, huge audience for finding freedom even in the chains that we carry around. So finding compassion when you are not in position to offer compassion. So yeah. Okay, that's a great. Now, ma'am, this there are some more questions about the book, but we will discuss it later because as of now, I just want to know something about फैज अहमद फैज, जिसके लिए मैं काफी इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए. तो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि फैज अहमद फैज कौन है. जो रीडर्स अगर उनके बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, क्यों वो आपको इतने पसंद है और क्यों आप उनसे इतना जुड़े हुए हैं, इसे ये भी शेयर कीजिए हमारे साथ. फैज अहमद फैज एक वो कवि हैं, एक वो राइटर हैं जिन्होंने प्यार के बारे में लिखा, लेकिन एड्रेस किया वॉर को, जिन्होंने सैडनेस के बारे में लिखा लेकिन खुशी से. तो ये वो राइटर हैं जो कि हमारे जहन में हमारे साथ आज भी जिंदा हैं. और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है विनीता अग्रवाल जी, जो कि दिल्ली से हैं, जो कि एक कवित्री हैं, इंग्लिश में लिखती हैं. उन्होंने एक किताब फैज अहमद फैज की कविताओं की किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ उनकी पोइट्री से जुड़ सके. और मुझे वो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अगर प्रोस में, अगर तुम एपिलॉग्स में या प्रोलॉग्स में इनके पीछे की उनकी कहानी जो कविता में उन्होंने कही वो लिख सको, तो शायद हमारा यूथ इन कविताओं से और जुड़ सके और उनको समझ आ सके. तो मैंने वो किया, और ये एक अपने ही तरह की एक्सपीरियंशियल बुक है, जिसमें फैज अहमद साहब की कुछ पोइट्री है, विनीता जी ने जिसको इंग्लिश में और सरल शब्दों में आज के यूथ के लिए ट्रांसलेट किया है, और मैंने उसके पीछे की कहानी जो है वो लिखी है. जैसे कुछ एग्जांपल्स. कुछ कविता इतनी इतनी उनकी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां तक तेरी है. एक ये है, और एक जैसे बहुत फेमस, सबको ही पता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग. तो जब वो अपनी परिधि को, अपने सर्कमफ्रेंस को
की खिड़कियां जब वो खोलते हैं फैज साहब, तो वो अपने निजी निजी प्यार को कब देश प्रेम में बदल दें, ये पता ही नहीं चलता। उनके शब्दों में वो जादू है, और उसी को कैप्चर करते हुए हमने उसके साथ की जो है वो कहानियां लिखी हैं। तो ये किताब भी बहुत जल्द आपके सामने आएगी। ये भी अपनी एडिटिंग स्टेज में है, और हम इसको सीरीज में निकालेंगे। पहले 15, फिर 15, फिर 15। सीरीज का रिस्पॉन्स जो है हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचे। ओके, दैट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग। सो अभी उसको रिलीज होने में कितना वक्त लगेगा, अगर रीडर्स जानना चाहें? आई थिंक वो अगले 1 महीने में, 1 डेढ़ महीने में रिलीज हो जानी चाहिए। That's great. So one more question about the Faiz Saab. Faiz wrote in a very specific historical and political moment like partitions, resistance, and imprisonment, exile. So yet his words feel urgently alive in 2025 in India, and in the या context of political polarizations, protests, silence voices. What is about fairs that refuses to become history? because he spoke about protest in a very tender voice. तो वो जो भी लिखते हैं वो नारे नहीं लगते, वो एक दुआ की तरह आपके कानों में और आपके दिल में घर कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रेजिस्टेंस या प्रोटेस्ट के बारे में सॉफ्टली, कोमलता से, प्यार की बात करते हुए लिखना, ये कोई फैज साहब से सीखे। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है दोनों को बहुत चुपचाप शोर मचा देना, बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि वो बहुत ही आत्मीयता से कर जाते थे। दैट्स अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। सो काफी हमने जाना मैम आपकी बुक्स के बारे में एंड जो अपकमिंग बुक्स आने वाली है उसके बारे में भी। तो रीडर्स से बस एक रिक्वेस्ट यही है कि इफ समवन वांट्स टू बाय द बुक ऑफ निशा लूथरा, अभी वो काफी बुक्स और भी लिखने वाली हैं, दैट ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट एज वेल। एंड फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी मैम ने कुछ बुक्स हमको शेयर किए हैं जो हम लोग पब्लिश करने वाले हैं, एंड दैट विल बी गोइंग टू अवेलेबल इन अनंता प्रेस पब्लिकेशन हाउस। सो एक्चुअली हम तो वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल लाइक आपने हमको बुक शेयर किया, हमें एक चांस दिया, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू लाइक सेल योर ह्यूज कॉपीज एंड लोगों तक ये बुक्स पहुंचनी चाहिए, आपका कंटेंट जरूर पहुंचना चाहिए। Yeah. Thank you, Vikrant. Thank you for all the help. Yes, ma'am. So now, ma'am, my next question is like now to something entirely unique. You are developing an modality called Chetna synthesis. We already talked Yeah, about this Chetna synthesis and about a yeah. Dr. Glenville, but now the word Chetna itself is a layered consciousness of awareness, awakening. So, what is Chetna synthesis? And in the simplest possible terms for our listeners who has never encountered it. Okay, so Dr. Glenville and I, we wanted to create something which can help someone just be themselves, not for validations, not for becoming, not for unlearning, but to just be aware of who they are. That's it. Chetana synthesis is an inward journey. It's nothing more than that. It talks to your emotions, it sits with your emotions through 4 pillars of our modality, which is breath. जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी ब्रेथ कितनी तेज काम करती है, जब हम शांत होते हैं तो हमारी ब्रेथ कैसे काम करती है, और उसको कंट्रोल करना, उसको जानना,
उसके ऊपर रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड करना, उसको चेतना सिंथेसिस सिखाता है। और मूवमेंट, हम क्रिया योग में भी हम इस तरह से बात कर रहे हैं या हम काम करते वक्त भी अपनी मूवमेंट से किस तरह से अपने फर्स्ट इम्प्रेशंस जो है वो छोड़ते हैं, किस तरह से हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, किस तरह से मूवमेंट हमारे मूड को किस तरह असर करती है, किस तरह माइंडफुल मूवमेंट जो है हमें बिल्कुल एक नया दिन दे सकती है। सो थर्ड is psychotherapy and psychodrama, role plays, theater, टॉक, सेशन, चैट, किस तरह से किसी दोस्त से बात कर लेना हमारा दिन जो है वो बदल देता है। As simple as these things and as complex as learning about oneself. फोर्थ इज द आर्ट थेरेपी, कलर्स, किस तरह से साउंड, म्यूजिक हमको इफेक्ट करता है, हमारे मूड को, हमारे रिफ्लेक्शंस को। ये सब चीजें चेतना सिंथेसिस के अंदर आती है और ये हम यंग एडल्ट्स के लिए भी करते हैं, पीपल इन हाईली प्रेशर्ड वर्क जॉब्स, कॉर्पोरेट्स, उनके लिए भी करते हैं, विमेन के लिए, ओल्ड एज के लिए। तो इसमें हमारी ऑडियंस सभी रहती है जो अपने आप से, अपने इमोशन से जूझ रहे हैं। ओके, सो इसके कुछ सेशंस होते हैं मैम, कि हाउ इज इट वर्किंग? जी, इसके सेशंस होते हैं, इसके वर्कशॉप्स हैं, इसमें रिट्रीट्स हैं, इसमें स्कूल में जाके लॉन्ग टर्म साल भर बच्चों के साथ काम है, इसमें बहुत सारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सब चीजें हैं। ओके, सो आई थिंक आप जी एक वर्कशॉप्स कंडक्ट्स भी कराते हैं। सो लेट्स जी सपोज इन आवर सिटी वी वांट टू होस्ट अ वन वर्कशॉप, सो हाउ इज इट राइट वर्किंग? कैसे आप किसी भी डिफरेंट सिटीज में इसको कंडक्ट कराते हैं? कौन जी कौन से लोग, यानी किस किस टाइप के लोग ज्वाइन कर सकते हैं? कैन स्टूडेंट्स आल्सो ज्वाइन योर वर्कशॉप्स? जी जी, ऐसा है कि हमने पैन इंडिया लेवल पर जैसे आंध्रा गवर्नमेंट ने, अगर मैं रीसेंट एग्जांपल दूं, समक्ष शिक्षा अभियान के अंतर्गत आंध्रा गवर्नमेंट ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने हम लोगों को इनवाइट किया था टू टॉक टू द काउंसलर्स ऑफ देयर 120 स्कूल्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। गुंटूर तक हम लोगों ने गर्ल्स स्कूल्स को विजिट भी किया जाकर, और फिर हमने इन काउंसलर्स और प्रिंसिपल्स के साथ वर्कशॉप्स की, और उन्होंने हमसे बात की कि जो शिक्षा के दौरान वो लोग जो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं उसको वो कैसे डील कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने केरला में भी काम किया है। पैन इंडिया हमने इस सारी स्टेट्स में जाके हम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके साथ हमने काम किया है। वो लोग हम लोगों को इनवाइट करते हैं, चाहे वो हफ्ते की वर्कशॉप हो, चाहे वो पूरे साल का एक मॉड्यूल हो, चाहे वो एक रिट्रीट हो, इन सब के जरिए हम उनके साथ जो है वो जुड़ते हैं। ओके, सो कहीं भी ये वर्कशॉप्स हो सकते हैं, am I right? जी बिल्कुल। ओके, दैट इज सो। अगर आप कोई पॉसिबल हो वर्कशॉप्स को ज्वाइन नहीं कर पाए, सो इज देयर पॉसिबिलिटी कि वो वर्क फ्रॉम लाइक सॉरी फ्रॉम ऑफ घर या फिर ऑफिस या फिर गूगल मीट या जूम के जरिए भी आपके वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकता है? और इज इट ओनली पॉसिबल इन द लाइक ऑफलाइन वर्कशॉप्स? No, online also it can happen. Online, Dr. Glenville and myself, we both are taking online sessions as well, because जो लोग न्यूयॉर्क में हैं, जहां पर भी डॉक्टर ग्लेनविल हैं और मेरी सर्विसेज वहां पर ऑफलाइन नहीं अभी ले सकते, तो हम लोग दोनों ऑनलाइन उन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। और जो इंडिया में है उसके लिए ग्लेनविल जो है वो हर बार जिस भी कॉलेज, जिस भी कॉर्पोरेट में हम लोग सेशन करते हैं वहां पर ग्लेनविल जो है वो पहले अपना एक प्रेजेंस जो है, अपना जो एक एड्रेस है वो करते हैं, और उसके बाद हम लोग काम शुरू करते दैट्स ग्रेट। सो अब कुछ मेरे स्मॉल क्वेश्चंस रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इन वेरी शॉर्ट। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन is like, who or what has been your greatest muse?
I would say life in its all its capacity is my greatest muse. Yeah. Okay. Hmm. Yeah. Thank And you. how do you break your writer's block? I just leave it right there. I read more, I listen more, I observe more. ओके एंड ये राइटर्स और पोएट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द मोस्ट इंस्पायरिंग फॉर योर राइटिंग ऐसा कुछ रहता है वक्त Um, for me, even if I'm cooking or even if I'm talking to my daughters, or even if I'm in the middle of rehearsals in a play, if some emotion or some line or some phrase stays with me, I think that is the right time to write. I just note it down on a paper or on in my mobile, and then I develop on it later on when I have the time. ओके सो you always have your diary with you. I do have my diary in my bag and I do have my phone notepad also. So I whatever is handy, I just write it down there and then even if on the piece of tissue paper. Mhm. That's great. So this is the whole conversation, ma'am. If anything else from your side you want to share to the young generations or new readers who are keen to buy your book, or after this podcast, they will be going to Amazon and they will be going to buy and read the book. So, what your suggestions and like your like something want to share to the new generation? I would say जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके अपने आप से जुड़िए, जितना हो सके खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और जब बात करने की ज़रूरत हो तो बात कीजिए। तो बस इतना ही। सो दैट इज द ग्रेट कन्वर्सेशन मैम जो हमने इस पॉडकास्ट से एक्सपेक्ट किया था आपसे हम लोग सीखें उससे ज़्यादा हम मैंने सीखा पर्सनली एंड डेफिनेटली जो इस कन्वर्सेशन को पूरा कन्वर्सेशन को एक बार देखेगा they will be going to learn a lot more about the Chitana synthesis, about the writing poet's journey and उसके साथ साथ एनलाइटमेंट की एक जर्नी कैसी होती है सो थैंक यू मैम जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया टू शेयर अबाउट योर जर्नी अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड टू टीचिंग द न्यू जनरेशन एंड योर वैल्यूएबल टाइम इज एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर अस हमने बहुत कुछ सीखा एंड होपफुली जो हमारे जो पॉडकास्ट को देखेंगे वो भी काफी कुछ सीखेंगे आपसे या थैंक यू विक्रांत, थैंक यू। यस मैम एंड सो हम लोग वेट करेंगे आपके नेक्स्ट बुक्स का एंड फॉर द रीडर्स आई एम इन द डिस्क्रिप्शन वी आर like giving all the links of the books that is available in Amazon by Nisha Luthra and the team and also अगर आपको चेतना सिंथेसिस या हाउस ऑफ हैप्पीनेस या द नरेटर्स के बारे में आपको कुछ भी जानना है you can visit ma'am website. The narrator is personally website of the company the narrators and Nisha Luthra and House of Happiness में आपको सीखने के मिलेगा चेतना synthesis and more about the concept about the चेतना synthesis and other things and the uh, anything else ma'am you want to share from your side at the last. मैं यही कहना चाहूंगी कि विक्रांत और उनकी टीम की तरह और उनके एक बड़े भाई भी हैं उनकी तरह सब युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए जहां ऐसा डायलॉग हो सके और ज्यादा से ज्यादा किताबों से जुड़े रहना चाहिए और जितनी मेहनत ये लोग करते हैं अपने काम में उतनी मेहनत डालने की क्षमता जो है वो इनसे सीखनी चाहिए। मैं हमेशा जो भी विक्रांत हमेशा प्रपोज करते हैं मैं उसको हमेशा यस कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है उसके पीछे ये बहुत ज्यादा होमवर्क और मेहनत डालते हैं और हर हर एक यूथ को आज इनसे ये बात सीखनी चाहिए और मोर पावर टू यू विक्रांत एंड योर टीम एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you ma'am.
वन लास्ट क्वेश्चन कि आप हमारे साथ बहुत टाइम से वर्क कर रही हैं, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद हर्स मैम? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती जब भी मैं यंगस्टर्स के साथ, यंग जनरेशन के साथ काम करती हूँ कि वो टाइम पर कभी भी पंक्चुअलिटी को एक अहमियत देंगे, क्योंकि मेरे लिए, मेरे ज़हन में, मेरे संस्कार में, मेरी अपब्रिंगिंग में ये कहा गया है कि जो समय के साथ नहीं चलते, समय उनको पीछे छोड़ देता है। और आपके साथ काम करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि आप बहुत समय का ध्यान रखते हैं, एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड आप लोग गिनकर चलते हैं, और जितना टर्न अराउंड पीरियड एज़ अ पब्लिशिंग हाउस आप लोगों का है, मैंने बड़े-बड़े पब्लिशिंग हाउस के साथ भी काम किया है। आई हैव सीन दैट दिस द एफिशिएंसी दैट यू मेंटेन just because you understand the respect of time for yourself and for the others is something to learn from. Thank you, ma'am. Thank you. So this is the whole conversation. We will definitely do a more podcast, more conversation whenever your future books will be going to release. So Right. thank you. थैंक यू। ये मीटिंग अब रिकॉर्डिंग से हटा देते हैं, वैसे एक बात कहनी थी मुझे।